الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 18 رمضان المبارک 1442 ہجری، 1 مئی 2021 عیسوی، 18 گتے بیساکھ 2078 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز، جنک پور دھام دھانوشا نیپال سے گزشتہ سال 1 رمضان المبارک سے اب تک سنتے آ رہے ہیں، اور ہر سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے بھیجے گئے سوالات یا آپ کے کال کیے ہوئے سوال کے جوابات تحقیق کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج کا نمبر ہے 041 590 239 041 590 239۔ اس پر آپ کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں۔ آج بھی فیس بک ID NID پر پروگرام نہیں چل رہا ہے، اب اللہ جانے اس میں کیا ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس لیے میں اپنا خاص ID شیخ مستقیم اس طرح سے لکھیں گے آپ تو آپ کو سنائی بھی دے گا، اور آپ اپنے سوالات لکھ کر کے بھیج بھی سکتے ہیں۔ شیخ مستقیم کہہ کر کے سرچ کریں گے تو آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں اور اس کے جوابات پا سکتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ NID فیس بک میں کیا پرابلم آ گیا ہے، پتہ نہیں، سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے سے ہر پروگرام آپ کو جنک نندنی FM فیس بک ID پر ہر روز کا پروگرام لائیو دیا جاتا ہے، اور ہر پروگرام کا YouTube چینل بھی بنتا ہے جس کا نام صدائے حق ہے۔ آپ صدائے حق لکھ کر کے YouTube میں سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ہمارے سارے علماء کرام کے خطابات، سوال جواب کا پروگرام، سارے ویڈیوز آ جائیں گے۔ آپ اپنا وقت نکال کر کسی بھی وقت ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح سے ہمیں دعوتی ناحیے سے آپ کا سبسکرائب کرنا یا لائک کرنا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، 041 590 239 یہ کھل گیا ہے، اور نیپال سے باہر کے احباب، باہر کے بھائی لوگ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو 00977 00977، اس کے بعد 41 590 239 یہ ڈائل کر کے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور جوابات پا سکتے ہیں۔ جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آتا ہے تو جو سوالات واٹس ایپ پر یا ہم سے پوچھے گئے ہیں رمضان کے دنوں میں چاہتا ہوں کہ فائدہ عامہ کے لیے ان سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ پہلا سوال ہے، کیا رمضان میں بحالت روزہ عقد نکاح ہو سکتا ہے، نکاح پڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے سوال کرنے والے ہیں حبیب رائن برمجھیا۔ جواباً عرض ہے کہ حالت روزہ میں، رمضان کے اندر حالت روزہ میں عقد نکاح پڑھانا جائز ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن دلہا دلہن کو چاہیے کہ بحالت روزہ آپس میں نہ ملیں اور افطار کے بعد آپس میں ملاقات کریں تو یہ بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیا پن کی وجہ سے دونوں بحالت روزہ ہی دونوں سے بہت بڑا جرم ثابت ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کی ہتک ہو جائے
اور اس کی बेइज्जती हो जाए। इसलिए निकाह होने में तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, निकाह तो मुनक़िद हो जाएगा, लेकिन दोनों मियाँ बीवी अलग थलग रहे इफ्तार तक तो बेहतर है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरा सवाल है, क्या ज़कात का माल मदारिस में दिया जा सकता है? ज़कात का माल मदारिस में दिया जा सकता, आम ज़कात, ज़कात फ़र्ज़ की बात कह रहा हूँ यहाँ, ये सवाल है ज़कात फ़ित्र का सवाल नहीं है, यानी फ़ितरा का सवाल नहीं है। आम ज़कात जो वाजिब है मुसलमानों पर, तो वो ज़कात का माल मदरसों में दिया जा सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, इसका मुख्तसरन जवाब मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये सुने कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद से अपनी मुअज़्ज़ज़ किताब कुरान मजीद में फ़र्ज़ ज़कात किन किन मदों में, किन किन जगहों में, किन किन लोगों में, किन किन कामों में सर्फ किया जाएगा, वो ख़ुद ही तज़किरा कर दिया। न अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सौंपा, न उलमाए किराम की तरफ छोड़ा, बल्कि ख़ुद ही मुतय्यन कर दिया। फरमाया कि इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरत तौबा आयत नंबर 60। तो देखिए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सदका यानी ज़कात, फ़र्ज़ ज़कात ये फ़कीरों के लिए है। आठ असनाफ गिनाया, फ़कीरों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, और जो ज़कात पर काम करते हैं, वसूली करते हैं, जो आमिल हैं, उसके कर्मचारी हैं, उन पर, और तालीफ़ क़ल्ब के लिए जो न्यू मुस्लिम हैं उनके तालीफ़ क़ल्ब के लिए, या जो गैर मुस्लिम है वो मुसलमानों के इस्लाम के साथ नरमी बरते उनके लिए, या फिर रिक़ाब या ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए, वल गारिमीन और कर्ज़दार है उस कर्ज़ को कर्ज़ अदा करने के लिए, व फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में, व इब्न सबील और मुसाफिर के लिए। मुसाफिर वो मुसाफिर गरचे मालदार क्यों नहीं है, लेकिन बहालत सफ़र उसका ज़्यादा राह ख़त्म हो गया, या जो माल रखे हुआ था वो चोरी हो गया, उसकी जेब कट गई, तो उसके लिए जायज़ है कि वो ज़कात लेकर अपने घर तक पहुँच सकता है। फ़रीज़तुम मिनल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुक़र्रर करदा है, ये फ़र्ज़ है, और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला और हिकमत वाला है। तमाम उलमाए किराम का इत्तेफाक है इस बात पर कि इन असनाफ, 8 असनाफ के अलावा जिनका ज़िक्र आयत करीमा में हुआ है, उनके अलावा किसी दूसरे मद में ज़कात सर्फ करना, खर्च करना जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं। इसलिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि हाज़िही लिहाउलाए, कि ये ज़कात इन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में मुक़र्रर किया है। इसी तरीके से इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह भी इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती क्या करते थे और कहते थे कि ये अल्लाह तबारक तआला ने, देखिए पहले ही कह दिया, सारी चीज़ कहने के बाद फिर ताकीदन अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि फ़रीज़तुम मिनल्लाह, यानी अल्लाह की जानिब से मुक़र्रर करदा है, किसी इंसान के का मुक़र्रर करदा नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने ताकीदन इस ज़िक्र किया ताकि लोग समझ लें। एक हदीस में आया है, लंबी हदीस है, कि ज़ियाद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने जो है सदका मांगा, ज़कात मांगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह, अगरचे इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, कि इन्नल्लाह ला यरदा बिहुक्म नबीइन वला गैरिही फ़ी सदका, कि अल्लाह तबारक व तआला राज़ी नहीं हुआ किसी नबी या नबी के अलावा किसी शख्स के फ़ैसले का ज़कात के बारे में, हत्ता हकम हुआ फ़ीहा, यहाँ तक कि उन्होंने ख़ुद उस पर फ़ैसला किया। फ़जज़्ज़ाहा थमानियत अज्ज़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 8 टुकड़े बयान किया, 8 हिस्सों में बयान कर दिया है। फ़इन कुन्त फ़ी तिलकल अज़्ज़ा आतैतुका हक़्क़क, अगर तू उन हिस्सों में से किसी में आता है तो मैं तुम्हें हक़ देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे भाइयों दोस्तों, लंबी गुफ्तगू में जाना नहीं इस मौजू पे, बल्कि यहाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने ये मसारिफ बयान कर दिया, सब पर इत्तेफाक है उलमा का। सिर्फ एक लफ्ज़ जो है फ़ी सबीलिल्लाह, इस फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, तो इसमें उलमाए किराम बढ़ चुके हैं।
اختلاف ہو گیا علماء کرام کے درمیان۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد جتنے بھی خیر کے راستے ہیں، یعنی مصالح عام مصلحتیں جن پر دین اور اسلامی ملک قائم ہے، جن پر دین اور اسلامی ملک قائم ہے، تو ان مصالح عام مصلحتوں میں سے مراد کیا ہے؟ اس میں یہ ہے، اس میں مجاہدین بھی ہو گئے، اس میں جو ہے جو سرحدوں کی ریکھ دیکھ کرتے وہ بھی شامل ہو گئے، اس میں جو ہے مدارس بنانا، ہاسپٹلیں بنانا، اور جو شرنارتھی لوگ آتے ہیں غریب غربا وہ ان کو کھلانا پلانا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، مانوتا کے مطابق ہے، مانو سیوا ہے جتنا، وہ سب اس چیز میں مصالح عامہ میں شامل ہو گیا، مصالح عامہ میں شامل ہو گیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جو غزوہ کرنے والے ہیں، غازی لوگ ہیں، وہی لوگ مراد ہیں، ان کے علاوہ مراد نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے جہاد ہے اور حج اور عمرہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول علماء کرام نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ سبیل اللہ سے مراد عام مصلحتیں ہیں، عام مصلحتیں ہیں۔ اس کی کئی توجیہ بیان کی ہے، عام مصلحتیں ہیں، اور بہت سارے پرانے قدیم علماء اور ابھی کے بہت سارے متأخرین علماء کرام نے اس قول کو پسند کیا ہے۔ اس کی کئی توجیہ، ایک دو توجیہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ لا یوجد نص صریح فی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنع ان یصرف جزء من سهم فی سبیل اللہ وفی المسائل العامہ ویحصر صرف فی جہاد۔ کہا کوئی ایسا نص صریح، کوئی ایسی دلیل صریح نہیں ہے کتاب اللہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو منع کرے کہ زکوٰۃ کے مال کو مصالح عامہ میں نہ خرچ کیا جائے اور صرف جہاد ہی میں خرچ کیا جائے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ ایک دوسری توجہ بیان کیا ہے کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطى دیۃ رجل من الانصار قتل بخیبر 100 من ابل صدقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی شہید ہو گئے تھے، کسی نے قتل کر دیا تھا خیبر میں دھوکہ سے، تو زکوٰۃ کے ہی مال سے 100 اونٹ دیت میں دیا تھا۔ اور یہ دیت جو ہے یہ مصالح عامہ میں سے ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے ہے، یہ عام مصلحتوں کے لیے ہے۔ تو اس حدیث میں صراحتاً دلیل ہے کہ عام مصلحتوں کے لیے زکوٰۃ کا مال ہم صرف کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں ایک اور پوائنٹ کی بات جو علماء کرام نے نوٹ کیا ہے آیت کریمہ میں، کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں چار لوگوں کے لیے کلمہ لام لایا ہے، یعنی تملیک کے لیے لایا ہے، تملیک کہ یہ لوگ جو ہیں اس کے مالک ہوں گے۔ کہا کہ انما الصدقات للفقراء، لام تملیک کے لیے یعنی مالک بنا کے، والمساکین مسکینوں کے ملکیت ہو جائے گی، والعاملین اس کی بھی ملکیت ہو جائے گی، والمؤلفۃ قلوبہم اس کی بھی ملکیت ہو جائے گی۔ یہ چار لوگوں کو لام پر معطوف کے عطف کیا ہے، اور لاسٹ والے چار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی کے ذریعے سے بیان کیا، اور فی یہ پوری چیز کو جو ہے سموتا ہے، اس میں یعنی برتن سموتا ہے۔ فرمایا وہ فی الرقاب، گردن آزاد کرنے، والغارمین قرض داروں کے قرض دینے کے لیے، وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل۔ تو علماء کرام نے یہاں ایک توجیہ نکالی ہے کہ جن لوگوں کے لیے لام تملیک کہا ہے تو وہ لوگ تو اس کے مالک ہو جائیں گے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس میں فی کا لفظ لائے چاروں لاسٹ والے میں، تو اس میں کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے۔ ایک برتن بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس برتن میں جتنی چیزیں شامل ہوں گی، جتنے بھی جو ہے شروط کے مطابق شامل ہوں گے، سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ کی بات بتا دوں، تو اس سب سے ثابت ہوا کہ آج کل جو مدرسے یا مکاتب یا مدرسے جن میں غریب غربا بچے پڑھتے ہیں،
تو وہ بھی حقدار ہیں زکوٰۃ کے مال کے، عام زکوٰۃ کے مال کے جو فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی حقدار ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں پہ عام لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہاسپٹل بنا دینا، کہیں پہ پل ٹوٹا ہوا آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے اس پل کو سدھار دینا، جتنے بھی جو اس کے آتے ہیں سب اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے شعبہ حفظ قائم کرنا اور کتابوں کو خرید کر کے غریبوں میں بچوں میں بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے، اور اسی کے قائل المجمع الفقہیہ جو رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ میں ہے وہ بھی اسی کے قائل ہے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے علماء کرام اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں اور ان پر رحمت فرمائیں، ان لوگوں نے دیار غیر میں یعنی ممالک کفریہ میں ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم زکوٰۃ کے مال سے مدارس قائم نہیں کریں گے اور ہاسپٹلیں قائم نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کی دیکھ دیکھ کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ جو ہے حکومت صرف ان مدارس کا تعاون کرتی ہے جو مدارس ان کے تحت ہے، لیکن عام جو مدرسے ہیں جن میں غریب بچے پڑھتے ہیں تو اس کو کوئی دیکھ دیکھ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ سبیل اللہ یہ عام لفظ ہے، اس میں مدارس بھی اور شعبہ حفظ والے بھی اور بھی اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تیسری اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلاء کلمت اللہ کے ضمن میں فرمایا کیا کہ وجاہد المشرکون، کہ مشرکوں سے منافقوں سے جہاد کرو مال سے اور نفس سے، لیکن منافقین سے جو جہاد ہوتا ہے وہ قلم سے ہوتا ہے اور عقل سے ہوتا ہے، قلم اور عقل سے ہوتا ہے۔ آج بھی جو ملحدین لوگ ہیں یا اسلام کو جو ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جو لکھنا یا تقریر کرنا، تو یہ اسلام کو ثابت کرنے کے لیے جہاد ہے، اس میں بھی مال زکوٰۃ خرچ ہونا چاہیے، اس میں بھی مال زکوٰۃ خرچ ہونا چاہیے میرے بھائیو دوستو۔ ایک اور بات بتا دوں یہاں کہ آج کل خاص کر اسلامی ممالک میں یا دنیا کے ہر ملک میں وزارت دفاع قائم ہے، اس کے تحت سرحدوں کی اس کے لیے بجٹ تیار کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی حاجت اس میں نہیں ہے، یہ ملک اپنے ہی سے اس کا بجٹ تیار کرتا ہے، اور جو ہے جتنے بھی لوگ کھٹتے ہیں، جتنے فوجی لوگ ہیں، وہ سارے لوگوں کی تنخواہ وغیرہ حکومت وقت دیتی ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں۔ تو اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے زکوٰۃ کی ان چیزوں میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ابھی زکوٰۃ کی ضرورت ہے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، ٹی وی چینل بنا کر کے اس میں اسلام کو پیش کرنے کے لیے، یوٹیوب بنا کر کے، یا اور بھی جتنے بھی طور طریقے ہیں اسلام کو نشر کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں میں ابھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے ایک بات کہی ہے، میں وہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال ہم مدرسہ میں دے رہے ہیں جس میں سے بچے پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اسلام کے سپاہی بنتے ہیں، اسلام کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کو رد کرنے کے لیے جو اٹھتے ہیں، تو اس میں اس زکوٰۃ دینے والے کو 2 اجر ملے گا، 2 ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اور دوسرا کیا کہ اس نے تعلیم کو نشر کرنے کے لیے جو دیا ہے اس کا الگ سے اجر ملے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے زکوٰۃ جو ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے 2 اجر ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا اجر ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مدارس اسلامیہ میں اپنی زکوٰۃیں دے رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، جہاں بچے اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہاں آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ پہلا اجر یہ کہ آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، دوسرا اجر یہ کہ آپ نے تعلیم کو نشر کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا، تو اس میں آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ میرے بھائی دوستو، یہ بہت لمبی بحث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توفیق کا مالک ہے، واللہ عالم بالصواب۔ میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو نئے پڑھ کر آتے ہیں، 1-2 باتیں جانتے ہیں، 1-2 دلیلیں جانتے ہیں، علماء کرام کی توجیحات
और दलाइल पर अबूर नहीं है, वो आकर के गांव घर में कुछ बातें बोल देते हैं और इस तरह से इससे खलफशार होता है। तो ऐसा करना बेहतर नहीं है, ऐसा करना ये अच्छी चीज़ नहीं है और इससे मज़ीद फितना होगा। अगर कुछ समझ में बात ना आए तो अपने से जो बड़े आलिम हैं उनसे कांटेक्ट करें, या अब आपके सामने किताबें हैं उससे भी नहीं हो रहा तो नेट पर सर्च करें और आप बड़े बड़े उलमा किराम के फतावा पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक तआला उसमें आपको रहनुमाई मिलेगी और आप फितने से दूर रहेंगे। अल्लाह हमें और आपको सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, ये प्रोग्राम सदाए हक आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जो जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ जनकपुर धाम धनुषा नेपाल से पेश किया जा रहा है। और 041 590 239 ये नंबर खुला हुआ है। इस नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। और उम्मीद तो नहीं है कि कोई आदमी सवाल करेगा। बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, कुछ करते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन तौफीक इलाही नहीं होती कि कोई सवाल कर ले जिससे उन्हें भी और सुनने वालों को भी फ़ायदा हो। लेकिन एक यहाँ बात मैं तंबीह के तौर पर कह दूँ कि एक ज़कातुल फ़ित्र जो हम ईद के करीब निकालते हैं, 1-2 दिन पहले या ईद की नमाज से पहले निकालते हैं, जिसको आम ज़ुबान में फ़ितरा कहा जाता है, इसका मसरफ़ क्या है? इसका मसरफ़ क्या है? तो इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जुमला फरमाया है, 2 जुमला। एक ये तुअमतुल लिस्साइम व तुहरतुल लिस्साइम व तुअमतुल लिलमसाकिन, के तुहरतुल लिस्साइम, रोज़ा की हालत में जो गलतियां इंसान से होती हैं, छोटी मोटी, किसी को गाली देना, कुछ करना, इधर उधर हो जाता है, उसके पाकी के लिए ये ज़कात है। दूसरा तुअमतुल लिलमसाकिन, मिस्कीनों के खाने के लिए, मिस्कीनों के खुराक के लिए, ताकि मसाकीन भी हमारे साथ ईद में, ईद की खुशी में शामिल हो सके, उनके बच्चे भी अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन सके, वो भी अपने घर में सवैयाँ और गोश्त खा सके। तो इस खुशी में शामिल होने के लिए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र वाजिब किया हर शख्स पर। आज अगर ईद की नमाज से पहले भी कोई बच्चा पैदा हो गया, उसकी जानिब से भी ज़कातुल फ़ित्र निकालना पड़ेगा। अगरचे उसमें पहला जुमला जो है तुहरतुल लिस्साइम सेट नहीं होता है, लेकिन तुअमतुल लिलमसाकिन उसमें सेट होता है। इसी तरीके से ईद से पहले कोई आदमी ज़िंदा था, उसकी तरफ से निकालना पड़ेगा। अगरचे ईद के फ़ौरन बाद वो मर गया होगा तो उसकी तरफ से भी ज़कातुल फ़ित्र निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ज़कातुल फ़ित्र का असल मसरफ़, असल खर्च है वो मसाकीन के हक़ है। और आजकल जो हमारे गांव घर में पूरे के पूरे मदरसे में दे देते हैं या मकतब ही में दे देते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं, वो इस तरह से करना, ये इस मसरफ़ के साथ, इस ज़कात के साथ बेहतर नहीं है, ये जुल्म है। हमें उलमाए कराम को चाहिए कि इस ज़िम्न में उठें और इसका मसरफ़ बयान करें, इसका मसरफ़ सेटिंग करें। आकाश जैसा कि बहुत सारे भाइयों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि अगर इसका एक फ़ंड हो जाता और उस फंड में ज़कातुल फ़ित्र जमा किया जाता और उस फंड से जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं जो ऊंची तालीम हासिल करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको मुयस्सर नहीं हो रहा है, या कोई बड़ा आलिम बनना चाहता है, उनको जो है मकतब के बाद उनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है कि उनके बच्चों के, उनके गरीब माँ बाप के पास पढ़ाने की सलाहियत नहीं है। अगर उन बच्चों की तालीम में इस मसरफ़ को अगर ख़र्च किया जाए तो कितनी बेहतर बात होगी, कितनी अच्छी बात होगी। इसी तरीके से जो गरीब गुरबा खाने के लिए तरस रहे हैं, एक बंदा आया मेरे पास 5-7 दिन पहले और मौलवी था, हाफिज़ कुरान था इंडिया का। वो मेरे पास आकर के कहा कि मदनी साहब, इफ्तारी और शहरी खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। हम मद्रास जा रहे थे तरावी पढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ से खबर आ गई कि लॉकडाउन हो गया, आप नहीं आइए। मैं किसी दूसरी जगह बात भी नहीं कर सका, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं कि हमारे बच्चे जो है शहरी इफ्तारी कर सके। यानी रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए सुन करके। आज हमारे घरों में कितनी ऐश और मस्ती है, खाते हैं, बर्बाद करते हैं, उड़ाते हैं, लेकिन जो पड़ोस में हमारे भाई हैं जो पानी पी करके सहरी करते हैं, पानी पी करके इफ्तार करते हैं, तो उनकी रेख देख कौन करेगा, उनका जो है उनकी पूछ कौन करेगा, उनका जो है ख्याल कौन रखेगा। मेरे भाइयों दोस्तों,
तो जितना हो सका मैं उस शख्स को, उस हाफिज़ कुरान को मैं ताउन किया। अल्लाह तबारक व तआला इस ताउन को कबूल फरमाए और सारे जो मशाकिल हैं उन मशाकिल को अल्लाह तबारक व तआला दूर करे। मुझे याद आ रहा कि जब मैं मदीना मुनव्वरा में पढ़ रहा था तो शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह से अफ्रीका से किसी ने पूछा नूरुन अला दर प्रोग्राम में रेडियो पे कि शेख क्या बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा हो सकता है, यानी मतलब कि सहरी में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, इफ्तारी में भी इफ्तार करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या बगैर सहरी खाए हुए और बगैर इफ्तारी किए हुए लगातार हम रोज़ा रखे? कुछ है ही नहीं, हमें ना पानी भी नहीं है, ना हम एक खजूर का दाना भी नहीं, एक कुछ भी नहीं मेरे पास। तो शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह रोने लगे और लाइन काट दिया और कहा कि देखिए हमारे मुल्क में एक एक बकरा 4 आदमी के लिए ज़बह किया जाता है और फिर खा करके उसको बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, और वहाँ हमारे भाई लोग हैं जो एक घूंट पानी भी उनको नसीब नहीं होता है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये अफसोस की बात है, अगर आज हम नहीं जागेंगे तो फिर हम कब जागेंगे, कब हमारे अंदर समझ बूझ आएगी। अपना निजी पैसा खर्च करके कोई आदमी पढ़ाना नहीं चाहता है, 4 बार 10 बार 20 कप चाय पियेंगे सुबह से शाम तक, गुटखा 20 खाएंगे, इसी तरीके से जो है टीवी का जो है वाईफाई का पे करेंगे, टीवी का पे करेंगे, बिजली बिल पे करेंगे, सारा पे करेंगे, लेकिन अगर बच्चों को पढ़ने के लिए अगर आप 500 रुपया फीस लगा दें तो वो नहीं है नानी याद आ जाएगी मुसलमानों को। हर काम करने के लिए पैसे हैं लेकिन पढ़ने पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। गैरों में देखिए एक रोड साफ करने वाला है, वो रोड साफ करके 2 रुपया जमा करता है, सुबह सवेरे अपने बच्चे को बेहतरीन नहला धुला करके बेहतरीन कपड़ा पहना करके उन्हें बोर्डिंग स्कूल में अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। इसीलिए ना कभी डॉक्टर एम्बेडकर बना, कभी कोई बना, कभी कोई बना, लेकिन हम हैं कि आज हम खर्च करना 2 रुपया भी खर्च करना नहीं जानते हैं, ना हमारे दिल में आता है। अल्लाह ही हिदायत का मालिक है। मेरे भाइयों दोस्तों, लंबी गुफ्तगू हो गई। एक और सवाल आया हुआ है कि क्या बहालत रोज़ा कोविड-19 यानी कोरोना का इंजेक्शन या आम इंजेक्शन इलाज के तौर पर लिया जा सकता है? तो मेरे भाइयों, रोज़ा की हालत में कोरोना का इंजेक्शन टीका लेने में कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से इलाज के लिए आम दवा जैसे गैस की दवा है या दर्द की दवा है या आपके लिए मुकर्रर है कि ये सुई लेना ही पड़ेगा आपको, तो इस तरह से इलाज के लिए आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो इससे रोज़े में कोई खलल नहीं आएगा। इसी तरीके से जो है खून निकालते हैं चेक करने के लिए, टेस्ट के लिए, तो उससे भी कोई मुश्किल नहीं है। दांत टूट गया या दांत उखड़ गया और उससे खून निकल गया, उससे भी रोज़े में कोई खलल, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन याद रखें कि कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं कि जो ग़िज़ा का काम करते हैं, यानी अगर आदमी ले तो दिन भर यानी 24 घंटा वो घूम सकता, टहल सकता, उसे भूख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ग़िज़ाई इंजेक्शन लेना जायज़ नहीं है, अगर लिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से पानी चढ़ाना है, पानी चढ़ाते हुए आदमी को खाने पीने की ख्वाहिश नहीं होती है तो पानी चढ़ाने से भी रोज़ा ख़त्म हो जाता है, उसे रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो खुलासा ये हुआ कि कोरोना का भी इंजेक्शन लेने से या आम इलाज के तौर पर इंजेक्शन लेने से जिसमें ग़िज़ाइयत नहीं हो तो ऐसे इंजेक्शन लेने में कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी है और मुझको यकीन है कि कोई आदमी फ़ोन नहीं करेगा और ऐसी गलती भी नहीं करेंगे लोग कि फ़ोन करें। और अफसोस की बात यह है कि हमारा NID का जो फेसबुक है वो उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया और मेरा तो एक आम ID है, उसी में मैं चला रहा हूँ ताकि इसका YouTube बन सके, तो ये अफसोस की बात है। एक और सवाल है कि हालत रोज़ा में गुल या टूथपेस्ट किया जा सकता है या नहीं। इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ। इसके साइल है कलीम कबाड़ी सिरहा। जवाबन अर्ज है कि रोज़ा की हालत में मिसवाक किसी भी चीज़ की हो करना जायज़ है किसी भी टाइम में,
चाहे असर के बाद हो, फजर के बाद हो, ज़ोहर के बाद हो, ज़ोहर से पहले हो, असर से पहले हो, मगरिब से पहले हो, इफ्तार से पहले हो, इफ्तार के बाद हो, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब रही बात कि टूथपेस्ट इस्तेमाल करना कैसा है, तो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन बेहतर है कि मिसवाक इस्तेमाल करें। अगरचे हर मिसवाक में टेस्ट होता है, कोई ना कोई मज़ा आता है। हम नीम का करते हैं तो तलख तीता होता है वो, इस तरह से बांस का करेंगे, बांस की मिसवाक करेंगे, उसमें भी कोई ना कोई मज़ा है। सऊदिया में पीलू की मिसवाक करते हैं, उसमें भी झांस है और कोई ना कोई मज़ा है। तो हर मिसवाक के अंदर कोई ना कोई टेस्ट है। तो इसी तरीके से टूथपेस्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं या टूथ पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई मज़ा है, लेकिन उसको आप सर नीचे करके जल्दी जल्दी कर लें, और ये याद रहे, एहतियात रहे कि उसका कुछ थूक अंदर न चला जाए। तो इस तरह से अब ऐसा नहीं कि लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और गुल खिला रहे हैं, कहाँ कहाँ टल रहे हैं और रगड़ रहे हैं, तो ये नहीं, बल्कि फ़ौरन उसको मिसवाक से तुझसे जो है साफ करके ख़त्म कर देना चाहिए। अब रही बात गुल की, तो ये गुल जो है ये तंबाकू से बनता है, तंबाकू से। जब बहालत रोज़ा तंबाकू खाना जायज़ नहीं है तो गुल करना कैसे जायज़ होगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, बहालत रोज़ा गुल न करें, इससे रोज़ा फासिद होने का ख़दशा है। बहुत सारे मौलवी भी इसमें मुब्तला हैं और वो ऐंच पेंच कील काल करके और अपना उल्लू सीधा करके गुल करते ही रहते हैं। अल्लाह हिदायत दे। तो मेरे भाइयों, रोज़ा की हालत में गुल नहीं करना चाहिए जो तंबाकू से बना हुआ है, लेकिन टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये प्रोग्राम आपको सदाए हक़ के नाम से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। एक और सवाल है कि हमारे यहाँ मैयत के नाम से इफ्तारी कराते हैं, तो क्या यह दुरुस्त है? जवाबन अर्ज़ है कि मैयत की तरफ से सदक़ा की जो भी किस्म हो, चाहे रोज़ेदार को इफ्तार कराना, गरीबों और आम मोहताजों को खाना खिलाना, गरीबों और मोहताजों में पैसा तकसीम करना या खाने की चीज़ें तकसीम करना, तो इससे कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि इससे फ़ायदा पहुंचेगा, मैयत को सवाब पहुंचेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इफ्तार अगर कोई करा रहा है सदका दे करके, तो क्या उसमें आम साहिब हैसियत को खाना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? तो मेरे भाइयों दोस्तों, जो अगर नीयत सदका की नीयत हो कि मैयत की जानिब से सदका है और उस सदका के पैसा से इफ्तारी कराया जा रहा है, तो उसमें साहिब हैसियत को इफ्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि गांव घर में जो गरीब मिस्कीन हैं उनको ही, जो हकदार हैं उसके, वही इफ्तार करेंगे, और साहिब हैसियत ना इफ्तार करें तो वो बेहतर है। इसी तरीके से एक सवाल आया हुआ है कि हालत रोज़ा में दिन में अपनी बीवी के पास सोना या उसे बोसो किनार से रोज करना, उससे रोज़े में कोई फ़र्क पड़ेगा? इनाम जुल्हा, कपिल वस्तु, नेपाल। तो इसका जवाब यह है कि जो शख्स बहालत रोज़ा अपनी बीवी का बोसा लिया या उसको छुआ या उसके साथ सोया, तो उससे रोज़े में कोई खलल नहीं होगा। लेकिन उसकी क्या शर्त है, आगे आ रही है। इसकी क्या दलील है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु व हुवा साइमुन व युबाशिरु व हुवा साइमुन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी का बोसा लेते रोज़ा की हालत में और अपनी बीवी के साथ सोते रोज़ा की हालत में, सोता रोज़े की हालत में। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको इस तरह से कहा कि किसी ने पूछा कि हम बीवी का बोसा लेते हो तो क्या करें? कहा कि तुम रोज़ा के हालत में कुल्ली करते हो कि नहीं करते हो? कहा कि करते हैं। तो कहा उसी तरीके से कुल्ली जिस तरह से है उसी तरीके से बीवी का बोसा लेना है। लेकिन शर्त यह है कि वह अपने नफ्स पर कुदरत रखे, और कुदरत रखते हुए उसके शर्मगाह से मनी का खुरूज न हो। अगर मनी का खुरूज हो गया तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा और उसे रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अगर मुख्तसर चीज़ जिसको मज़ी कहते हैं अगर वो निकल गई तो उससे रोज़े में कोई खलल नहीं होगा। और बेहतर यह है कि जवान लोग, जिसकी नई शादी हुई है, वो इन चीज़ों से दूर रहे, तो इसी में ही भलाई है। जैसे कि अबू दाऊद की रिवायत है कि
एक शख्स ने इस्ताज़नहु इंसानुन फी तक़बील फ़अज़न लहू वस्ताज़नहु आखर फ़लम याज़न लहू फ़इज़ल्लज़ी अज़न लहू शेखुन कबीर वल्लज़ी लम युज़न लहू शाबुन। कहा कि हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने जो है इजाज़त तलब किया रोज़ा की हालत में बोसा लेने की, तो आपने उस शख्स को इजाज़त दे दिया, और दूसरे ने इजाज़त तलब किया तो उसको इजाज़त नहीं दिया। तो देखा गया कि जिसको इजाज़त दिया था वो बूढ़े थे और जिसको इजाज़त नहीं दिया था वो नौजवान थे। तो यहाँ अहले इल्म ने कहा है कि इसका माना यह है कि वो नौजवान जो अपने नफ्स पर कुदरत नहीं रखता है और उसकी शहवत गालिब हो जाती है, तो उसको चाहिए कि वो इन चीज़ों से दूर रहे, और जो अपने नफ्स का मालिक है, अपने नफ्स पर कुदरत रखता है या बूढ़ा है, तो उन लोगों के लिए कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, हो सकता है कि आखिरी सवाल हो जाए, मेरे पास 10 मिनट बाकी है। इफ्तार का वक्त क्या है और उसमें ताखीर अफजल है या जल्दबाजी करना? जवाबन अर्थ है कि जब सूरज गुरूब हो जाए, ये मैं गुज़श्ता हफ्ता भी बोला था कि जब सूरज गुरूब हो जाए और पूरब से रात की स्याही नमूदार हो जाए तो इफ्तार का वक्त हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वतिम्मुस्सियाम इलल लैल, रोज़ा पूरा करो रात तक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हा होना व अदबर अन-नहारु मिन हा होना व ग़रबति शम्स फ़क़द अफ़तर। तो मेरे भाइयों दोस्तों, देखिए मैं अभी रेडियो में हूँ, मेरे मोबाइल पर फ़ोन न करें तो इसी में बेहतर है। रेडियो का नंबर है 041 590 239, इस पर कॉल करें और कॉल करके जो सवाल है सवाल करें तो बेहतर रहेगा। अब 5-7 मिनट बाकी, मैं फारिग हो जाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब पूरब से रात आना शुरू हो जाए, वह अदबरन नहारो हा होना, और दिन इधर गुजरने लगे और सूरज गुरूब हो जाए, तो उसी वक्त रोज़ा इफ्तार सायम करेगा, रोज़ेदार इफ्तार करेगा। ये सही बुखारी हदीस नंबर 1954 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1100। तो इससे भी पता चला कि असल शर्त यह है कि सूरज गुरूब हो जाए। सूरज क्या हो जाए? सूरज गुरूब हो जाए और यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो गया तो रोज़ा उसी वक्त इफ्तार कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, कि लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करेंगे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1957, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1098। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालुद्दीनु ज़ाहिरन मा अज्जलन नासुल फित्र, कि लोग जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे दीन गालिब रहेगा, इस वजह से कि यहूद व नसारा उसमें ताख़ीर करते हैं। ये इब्न माजा की रवायत है, हदीस नंबर 1698। अबू अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और मसरूक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी हैं, उनमें से एक इफ्तार और नमाज में जल्दी करता है और दूसरा इफ्तार और नमाज में ताख़ीर करता है। उन्होंने पूछा दोनों में कौन इफ्तार और नमाज में जल्दी करता है? हमने कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद। उन्होंने कहा कि इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और दूसरे सहाबी अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, जिस नंबर 1099। मगर जल्दी करने का मतलब यह नहीं है कि सूरज गुरूब होने से पहले ही रोज़ा तोड़ ले, या बादल छा गया और अंधेरा छा गया और सूरज गुरूब भी नहीं हुआ और लोग हल्ला कर दिए कि अब टाइम हो गया और इफ्तार कर ले, तो ऐसा नहीं, बल्कि सूरज गुरूब होने के फौरन बाद इफ्तार कर लेना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। अब आइए, एक सवाल उठता है कि कुछ लोग एहतियात के तौर पर इफ्तार करने में ताख़ीर करते हैं कि हालांकि आज़ान हो जाती है और बज़ाहिर सूरज गुरूब हो जाता है, क्या एहतियात के नाम पर ऐसा करना दुरुस्त है? जवाबन अर्थ है कि जब यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि सूरज गुरूब हो गया है तो फिर एहतियात के तौर पर ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता बदली लगी हुई हो या गर्द गुबार की वजह से शक हो, घड़ी नहीं है, टाइम टेबल मालूम करने का कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, या सफ़र में हैं, वहाँ कोई साधन नहीं है वक्त पहचानने का, तो वहाँ अगर 2 मिनट 4 मिनट एहतियात कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब यकीन कामिल हो जाए
कि रोज़ा सूरज गुरूब हो गया है, सारा कुछ हो गया है, और वहाँ अगर एहतियात बरत रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये तहक़ीक़ किसकी थी? फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर फजलुर रहमान रहमहुल्लाह की ये तहक़ीक़ थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश किया। एक और चीज़ बयान करके मैं अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। और रोज़ा की हालत में झूठ, गाली गलूज, बदज़ुबानी, ग़ीबत, चुगलखोरी और हक़ बात छुपाने का खौफनाक अंजाम क्या है? ये तहक़ीक़ है फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा काबी अज़हरी बेलहावी की, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा है, कहा कि इसका क्या अंजाम है खौफनाक। देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं कि ऐसा शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। ये सही बुखारी हदीस नंबर 1903 और अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह में। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस नकल करते हैं अबू हुरैरा ही की कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा कान यौम सौम अहदिकुम फ़ला यरफ़ुस वला यस्ख़ब व इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी इम्रुउन साइमुन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई किसी दिन रोज़े से हो तो उसे चाहिए कि फहश गोई न करे और न शोर मचाए, गाली गुलूज न करे। फहश गोई क्या मतलब? गाली गुलूज न करे, झगड़ा लड़ाई न करे। और अगर कोई उसके साथ गाली गुलूज करे या लड़ना चाहे तो वो सिर्फ ये कह दे ज़ुबान से कि भाई मैं रोज़े से हूँ, अल्लाह माफ़ करे, तुम जाओ, मैं ही हारा, भागो यहाँ से। तो ये सही बुखारी हदीस नंबर 1904, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1151। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अस्सियामु जुन्नतुन फला यरफस वला यजहल। कहा कि रोज़ा जो है ये ढाल है, गुनाहों से बचने के लिए ढाल है ये। तो इस हालत में, रोज़ा की हालत में फहश बातें, गलत बातें न करें और जहालत वाली बातें न करें। इसी तरीके से एक और हदीस है, ये सही बुखारी की रिवायत है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन लम यदा अल खना वल कज़िब फला हाजत लिल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु, कि जिसने बदज़ुबानी और झूठ न छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी सनाद सही है, मौजम सग़ीर लितबरानी हदीस नंबर 472 और सही तरग़ीब व तरहीब हदीस नंबर 1082। मज़कूरा बाला तमाम हदीस से मालूम हुआ कि माह रमज़ान पाने के बावजूद झूठ बोलना, हक़ बात छुपाना, ग़ीबत करना, चुगलखोरी करना, फ़िस्क़ व फ़ुजूर की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, बुरे काम करना, हराम खोरी करना, गुनाह के काम करना, मुनाफ़क़त के काम करना, वो दोगलापनी करना, यानी हमारे पास आए तो कहे कि आप सही हैं, दूसरे के पास जाए तो कहे कि वो शख्स सही नहीं बल्कि आप ही सही है। अगर ये तमाम अशिया, तमाम खराबियाँ माह रमज़ान में रोज़े की हालत में तर्क नहीं करता तो उसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, मुसलमानों को चाहिए कि अपने रोज़ों की हिफाजत करे, जैसा कि जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इज़ा सुमता फलियसुम समउका व बसरुका व लिसानुका अनिल कज़िब वल महारिब। अगर तुम रोज़ा रखो तो चाहिए कि तुम्हारा कान भी रोज़ा रखे, तुम्हारी आँख भी रोज़ा रखे, तुम्हारी ज़ुबान भी रोज़ा रखे झूठ बोलने से और हराम चीज़ों के देखने से। वदा अदल खादिम, और खादिम गरीबों को सताने से। वलियकुन अलैका वक़ार व सकीना यौम सियाम का, और तुम्हारे ऊपर एक वक़ार, एक इज़्ज़त होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए रोज़ा के दिन। ऐसा न कि मन हवाए हुए हो, होंठ सुखाए हुए हो और मुँह सुखाए हुए, जो हम रोज़े से हैं, लग रहा है कि बहुत बड़ा एहसान कर रहा है मुसलमानों पर, इस्लाम पर, अल्लाह ताला पर। वला तजाल यौम फितर का वसौम का सवा, और खाने पीने के दिनों और रमज़ान के दिनों को एक मत करो, बराबर न करो। मेरे भाई दोस्तों, ये मुसन्नफ़ इब्न शैबा हदीस जिल्द 2 सफ़ा 271 और शुअबुल ईमान अल बैक़ी सफ़ा 247 और जिल्द नंबर 5 और इब्न मुबारक की ज़ुहद किताबु ज़ुहद में 13 से 8। इसी तरीके से मेरा वक्त भी अब ख़त्म होने के करीब है और एक दो हदीस और बयान करना चाहता हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو کہا آمین آمین آمین، 3 بار آمین کہا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ممبر پر چڑھے تو آمین کہے، ایسا کیوں؟ تو کہا کہ جبریل علیہ السلام آتانی جبریل فقال من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ قال آمین فقلت آمین۔ جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی معافی نہیں ہو سکی اور جہنم میں داخل ہو گیا تو اس کو اللہ اور دور کرے، برباد کرے، بھگائے۔ تو حضرت جبریل نے آمین کہا تو میں نے بھی آمین کہا۔ یہ اس کی سند صحیح ہے، ابن خزیمہ حدیث نمبر 907 اور ابن حبان حدیث نمبر 7448، اور صحیح ترغیب ترہیب میں شیخ البانی نے اس حدیث کو 1005 پر ذکر کیا ہے۔ آخری حدیث ابو ہریرہ ہی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس کی مغفرت نہ ہونے پائے اور رمضان گزر گیا۔ اسی طریقے سے میرا ذکر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ذکر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو وہ شخص خاک آلود ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2551 اور ترمذی مسند احمد وغیرہ میں۔ معلوم ہوا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اس لیے کہ اس کی مغفرت ہونے سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کو غنیمت سمجھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، کیونکہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اگر ہماری زندگی میں رمضان المبارک آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جملہ ارکان و شروط کے ساتھ اس کے روزوں کی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے ظاہری و پوشیدہ گناہوں کی بخشش کی دعا بھی کریں، نیز اپنی عبادات اور دنیاوی معاملات کو دین حنیف کے مطابق سر انجام دیں تاکہ گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزے کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، سارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھ اور ہمارے سارے جسم کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو یہ کرونا بیماری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، اے اللہ دنیا والوں کو نجات فرما دے، اس سے رحم فرما ہم لوگوں پر۔ اے اللہ جو گزر گئے ہیں ہم میں سے ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ اس کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔